Honorable Provincial Ministers, DG ANF, RD Commander, government officials, media personnel, Assalamu alaikum. آج منگو پیر ریہیبلیٹیشن سینٹر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور جس میں ہم سندھ حکومت، چیف منسٹر سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس طرح کہ سندھ حکومت نے پریویسلی کراچی لیاری کے مقام پہ، حیدرآباد اور سکھر میں یہ بلڈنگز پرووائڈ کی، ان کے آپریشنل کاسٹ کو بیئر کیا اور مکمل تعاون کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نشہ بڑھتا جا رہا ہے. پریویسلی ہمارے ہاں ٹریڈیشنل ڈرگ ہوتا تھا ہیروین، اوپیم اور حشیش، مگر انفارچونیٹلی اب ہمارے ہاں سنتھیٹک ڈرگز ہیں. پریویسلی کچھ علاقوں میں نشے عام تھے، مگر اب تعلیمی اداروں میں نشے عام ہو گئے ہیں. 11 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، 22، 24 سال، 30 سال کے نوجوان اس نشے میں بڑھتے جا رہے ہیں، صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کو، اپنے نوجوانوں کو نشے سے کس طرح دور رکھنا ہے. جس طرح انہوں نے بتایا ہمارے RD کمانڈر بریگیڈیئر رضوی نے کہ اس میں ریہیبلیٹیشن کے بعد لوگ جب نکلتے ہیں وہ دوبارہ انہی جگہوں پہ پہنچتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے. تو اس میں ٹیفٹا نے جس طرح اپنا کردار ادا کیا ہے، اینڈ آئی تھینک جلبانی صاحب آن اٹ، کہ ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. اور جس طرح سے یہ ٹریننگز جو دے رہے ہیں، لوگوں کو ہنر سکھا رہے ہیں جس سے بہتری آ سکے گی. اور اس مقام پہ آئی ووڈ ریکویسٹ چیف منسٹر کہ اگر اس میں جیسے ٹیفٹا کے جلبانی صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو لینگویجز سکھاتے ہیں، تو یہ لوگ یہاں سے جب باہر نکلیں تو میری گزارش ہوگی اگر چیف منسٹر صاحب اس کا اناؤنس کریں کہ لینگویج کورسز بھی اگر سکھائیں، عربک، چائنیز، کیونکہ ہمارے یہاں سے جب لیبر فورس جاتی ہے تو GCC کنٹریز میں زیادہ جاتی ہے، اور چائنیز اس وجہ سے کہ یہاں اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں CPEC، اور اس کی وجہ سے شاید یہ ان کو مزید جاب اپرچونٹیز میں کچھ بہتری لا سکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ریلیپس کا تعلق ہے تو ہم چیف منسٹر صاحب سے بات کر چکے ہیں. یہاں سبسٹیٹیوٹ ڈرگ تھیراپی پہ بھی بات چل رہی ہے. دیر از اے میڈیسن کالڈ میتھڈون. آسٹریلیا میں کلینکس ہوتے ہیں، اور ایک تھرو کلینکس لوگ رجسٹر ہوتے ہیں اور صبح شام اپنی ڈوز لیتے ہیں، کیونکہ اگر اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس کے بھی OD کے چانسز ہیں، تو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ایک نشے سے نکالیں اور دوسرے پہ OD ہو جائیں. اور اسی طرح ہماری UN ایجنسیز سے بات ہو رہی تھی، دیر آر ادر ٹیبلٹس، میڈیسنس، جس پہ جیسے ہی آپ کسی کو ریہیبلیٹیشن میں اس کا استعمال کرائیں تو انسان وہ دوا لینے کے بعد کسی بھی نشے کا استعمال کرے تو جو ہائے ہوتا ہے وہ ہائے اسے نہیں ملتا، تو وہ بھی انسان کو ڈسکریج کرتا ہے، اور اس نشے سے امید ہے کہ وہ دور ہونے میں ہماری مدد کر سکتا ہے. اور جیسے کہ ہمارے RD کمانڈر نے پریویسلی بتایا کہ جو ہمارے پاس جتنے بیڈز تھے اس کی وجہ سے جو نمبر ہم ٹریٹ کر سکے اور جتنی ویٹنگ ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے جس طرح اس ٹائم ہم جہاں کھڑے ہیں اس کی اناگریشن، اور اس کے بعد دوسرا سینٹر جو ہے ملہیر کے مقام پہ، اور کراچی کی 2 بڑی جیلوں میں، جس کی وجہ سے یہ جو ہماری ویٹنگ لسٹ ہے اس میں خاصی کمی آئے گی، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریٹ کر سکیں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو اس حکومت کا آئینی وقت ہے اس میں ہم مزید، چیف منسٹر صاحب کو ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر ہم 2 آج ہو رہے ہیں اور 6 اور اگر کر لیں تو ہم ان کے بے حد شکر گزار ہوں گے. اینڈ ایٹ لاسٹ ہم پوری سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو جی. بہت شکریہ. انیک الرحمان DG ANF بریگیڈیئر رضوی، اس کے علاوہ جو ہمارے سول سوسائٹی سے
सरदार यासीन और बाकी सारे दोस्त हैं, शोबिस के कुछ दोस्त आए हुए हैं, मोजेस स्टेफ्टा के चेयरमैन, हमारे सिंध गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी समेत सारे एम्प्लॉइज़, ख़वातीन और हज़रात और मेरे मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ ANF का कि आज उन्होंने इस तकरीब को मुनक्किद किया है, जिसमें हम एक सेंटर और ऐड करने जा रहे हैं, बेनज़ीर शहीद मॉडल एडिक्स ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन मंगो पीर। इसके साथ साथ मलीर वाला सेंटर भी तैयार है, और जैसे आपको बताया ब्रिगेडियर रिजवी ने कि इन 2 सेंटर्स के बाद हमारी डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। ड्रग्स की जो मेनेस है उसके बारे में मैं तो मीटिंग्स में भी कहता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जहाँ हम बैठते हैं हर फैमिली का कोई ना कोई बच्चा इस मेनेस में हमें मुलविस पाया जाता है, और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो एक सवालिया निशान है वो यही है। और हमें इसका जैसे कहा कि जी 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज़ हैं। नंबर 1 इसकी सप्लाई, इस पे कंट्रोल करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल करना है, और फाइनली जो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं उनकी रिहैबिलिटेशन, और जैसे बताया कि उनकी रीइंटीग्रेशन पे काम करना है कि वो इस माशरे के एक इकॉनमी को, इस माशरे की इकॉनमी को और हमें मुल्क की डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा कर सकें। नंबर्स आपको बताए गए, जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया, जो ट्रीटमेंट हुई है, डिमांड इससे बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी चीज़ है कि जो होनी नहीं चाहिए, और हम शाहजैन बुगटी साहब के साथ रेगुलर मीटिंग्स करें, बल्कि आज भी इस इवेंट के बाद दोबारा मीटिंग है। आज से ख़ाली 15 दिन पहले या 3 हफ्ते पहले हमने मीटिंग की थी, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी जो ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके, इसकी सप्लाई और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। और जैसे अभी शाहजैन बुगटी साहब ने, नवाबजादा साहब ने बताया कि हम सब्स्टिट्यूट ड्रग थेरेपी पे भी काम कर रहे हैं, और उसके लिए भी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ये इसको भी आपने बड़ा संभाल के चलना है, इसलिए कि ये नहीं कि एक नशे से निकले और इसमें चल जाए तो वो ऐसी क्वांटिटीज़ में सिर्फ ऐसे सेंटर्स पे आके जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ये सब्स्टिट्यूट थेरेपी दी जाए और स्लोली टेपर ऑफ किया जाए ताकि वो इस चीज़ से निकल सकें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, चाहे वो इधर बैठा है चाहे मुझे सुन रहा है, इस चीज़ में कहेगा कि जिसमें हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हर एक, और मैं ख़ास तौर पे जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसकी जो मदद है इस ड्रग के मेनेस से जान छुड़ाने के लिए, उसको एक्नॉलेज भी करता हूँ और उनसे ये इल्तिजा भी करता हूँ कि हमें और साथ दें। इधर मैं बैठा था तो शाहजैन बुगटी साहब ने 2 चीज़ें कही हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहली बात उन्होंने कही कि जी, और सलीम जलबानी साहब ने अपनी जो तकरीर थी उसमें बताया कि स्टेफ्टा लैंग्वेज कोर्सेज़ भी करा रही है। उन्होंने कहा कि जी हमने इनको एक माशरे में जो ड्रग एडिक्ट्स आते हैं, हम बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग तो दे रहे हैं स्टेफ्टा की मदद से, लैंग्वेज ट्रेनिंग भी। तो सलीम साहब, इफ़ यू कैन काइंडली मीट नवाबजादा शाहजैन, इसके बाद इस आप कर भी लीजिएगा ताकि इस पे काम आगे बढ़ाएं, एंड वी विल डू इट। और 2 लैंग्वेजेस जो आइडेंटिफाई की राइटली सो, चाइनीज़ और अरबिक, इसलिए कि हम एक्सपोर्ट अपना जो है लेबर फोर्स उधर कर रहे हैं, और चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस दुनिया में इस वक्त है, हमने प्रेसिडेंट जरदारी जब सदर पाकिस्तान थे उस वक्त से हम लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं हम अपने हर इंस्टीट्यूट में, और स्टेफ्टा ने उसी की वजह से ये शुरू किया। लेकिन हम इन जो आपके हमारे ड्रग रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सेंटर्स हैं उनमें भी ये शुरू करते हैं। इसके साथ साथ नवाबजादा साहब ने कहा कि जी वो बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर और कराची के करीब, कराची में उसके आसपास एक 500 बेडेड हस्पताल बनाए। उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसी से भी बात की है जो इसमें मदद करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा सिंध हुकूमत से कोऑपरेशन चाहिए। मैं आपको कमिट करता हूँ ये कोऑपरेशन सिंध हुकूमत से आपको मिलेगी। और लेट अस स्टार्ट, अभी हमारे पास इस टर्म एंड में 2-3 महीने, इसका अगर नवाबजादा साहब आप तेज़ काम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ दौड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इसका फाउंडेशन
लगा दिया जाए. लैंड विल बी अवेलेबल. चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, सुन रहे हैं. विल वर्क ऑन इट. चीफ सेक्रेटरी साहब वैसे भी इस काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं. ये दोनों चीज़ों के अलावा आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो हमारी है, ना सिर्फ हमारे बॉर्डर्स पे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में वो मदद कर रही है, बट जो आखिरी स्टेप है, जो थर्ड प्रॉन्ग है कि जी जो इस नशे में अनफॉर्चुनेटली एडिक्ट बन जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर रही है. हमने लियारी में सेंटर शुरू किया था और उसकी सक्सेस देख के, इसलिए हमें पता है डिमांड इनके पास इतनी ज़्यादा है. हमने कहा कि हमारी जो भी अवेलेबल हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे हम उनको सही इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं, और स्टेफ्टा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग ये दी और उस पे हम ये ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू करें. डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है. वो 500 बेडेड हॉस्पिटल की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और आपने इस्टेब्लिश कर दें. वी विल मेक द मनी अवेलेबल, इसलिए कि आप हमारा काम ही कर रहे हैं. हमारे सूबे के जो लोग इस मेनेस में मुलविस हो जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, तो आपकी जो इनिशिएटिव है, हमारी कोऑपरेशन बिल्कुल साथ रहेगी और हम इंशाल्लाह ताला साथ मिलके इसका मज़ीद इस मेनेस का मुकाबला करेंगे. और ये वाव करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम एक ड्रग फ्री पाकिस्तान बनाएंगे और ये हमारी तरक्की जो होगी उसका ज़ामिन होगा अगर हम ये इंशाल्लाह ताला अचीव कर सकें. मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ ANF का मुझे इधर बुलाने के लिए, और जो सारे इधर दोस्त आए हैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और एक ऐसी इवेंट में शिरकत की. आपकी जो लफ्ज़ इधर से जाएंगे आप दूसरे लोगों को बताएंगे, वो भी हमारी मदद के लिए आएंगे. सिंध हुकूमत वैसे ही अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स में पूरे मुल्क से आगे है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कई ममालिक से आगे है. और हम इसको मज़ीद, और ये हमारी इसीलिए कॉन्फिडेंस आया है. सरदार यासीन बैठे हमारे साथ, पता नहीं कितने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये साथ इन्होंने हमारा दिया है. इसके अलावा बहुत मुखैर हजरात हैं जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे साथ मिलके काम करते हैं. तो अगर आप आगे जाके बताएंगे, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने जो इंडोस्कोपी यूनिट है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट, उसका इफ्तिताह किया था. और उधर भी हमें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उन्होंने कहा कि हमें कभी सिंध हुकूमत से प्रॉब्लम नहीं हुआ डील करने में. परसेप्शंस पता नहीं कैसे बन जाती हैं, शायद मेरी शक्ल ऐसी है. अदरवाइज़ सिंध हुकूमत, मेरा ख्याल ये है कि बाकी तीनों हमारी गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा आगे है. और ये तो इसलिए कि हमें तो अवार्ड भी मिला हुआ है. इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने सिंध को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक सॉवरन नेशंस के साथ जज करके, और उन्होंने पूरे एशिया में 6ठे नंबर पे किया और पाकिस्तान उसमें 12वें नंबर पे. और सिर्फ 2 स्टेट्स थी, एक इंडियन स्टेट है और एक जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स और एक सिंध है जिसको ये मिला है. तो हम चाहेंगे कि आप हमारा साथ और दें इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ख़ास तौर पे हेल्थ और ये जो ड्रग रिहेबिलिटेशन है इसमें हमारा साथ दें. ये भी एक हेल्थ का ही इशू है. इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके, जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क को सूबा सिंध से शुरू होकर और इस पूरे मुल्क को ड्रग फ्री करेंगे, और जो हमारे मुल्क की बदनामी भी होती है इन ड्रग्स के हवाले से उस पर भी कंट्रोल पाएंगे. एक बार फिर मैं ANF का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ आए. इंशाल्लाह ताला ये हमारा सफ़र टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल ऑफ सिंध जारी और सारी रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. मैं 2-4 For Narcotics Control, Nawabzada Shahjahan Bugti Sahab, Director General Anti-Narcotics Force, Major General Muhammad Anikur Rahman Malik, Hilal Imtiaz Military, parliamentarians, business community, celebrities, civil society, media के नुमाइंदगान और ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम. मैं आप सबको MATRC मंगोपीर की इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पे खुशामदीद कहता हूँ, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के जो हमारी ड्रग फ्री सोसाइटी का मिशन है उसमें आके हमारी हौसला अफजाई की. ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनशियात एक ख़तरनाक लानत है जो हमारे माशरे में फैल रही है. इससे ना सिर्फ
नशा ओवर अफेक्ट होता है, बल्कि उसके फैमिली, उसके अहबाब, उसके आसपास जितने दोस्त और मजमूई तौर पर ये सोसाइटी पे असरअंदाज होता है। तो इस जो इसके ख़िलाफ़ जो हमारे जहाद है वो एज ए सोसाइटी हम सब ने इसके ख़िलाफ़ लड़ना है और हम सब को मिल के इसके ख़िलाफ़ कोशिश करनी है। इस सिलसिले में जो जितनी भी पाकिस्तान में मनशियात के ख़िलाफ़ जो भी एफ़र्ट हो रही है, कोशिश हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उसमें ANF जो है वो एक लीड एजेंसी है जो पाकिस्तान में तमाम एंटी नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स एफ़र्ट जितने भी है उनको लीड करती है। इस सिलसिले में जो एंटी नारकोटिक्स है मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए 2 तरीके से इस्तेमाल करती है। एक सप्लाई रिडक्शन, जो कि सारी जितनी हमारी इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस सब इस सप्लाई रिडक्शन में आते हैं। दूसरी है डिमांड रिडक्शन, डिमांड कम करने के लिए, जो बेसिकली लोगों को डिस्करेज करना कि इसकी तरफ ना आए। जो हमारी डिमांड रिडक्शन है इसको हम 2 तरीके से फर्दर इसको हम 2 तरीके में डिवाइड किया हुआ है। एक पहला हमारी कोशिश होती है प्रिवेंशन, ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंशन, जो हम करते हैं मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू, जिसमें स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटीज़, इन सब से हम इंटरेक्ट करते हैं, इनको आगाही देते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी के साथ इंगेज करते हैं, सेमिनार्स, लेक्चर्स, रैलीज़, मुख्तलिफ चीज़ों से हम इसको लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। उसमें जो दूसरा ड्रग डिमांड रिडक्शन के उसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो है ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के पर्पस के लिए RD सिंध ऑलरेडी इस वक्त 3 हॉस्पिटल, इनकी इनॉग्रेशन से पहले हम सिंध भर में 3 हॉस्पिटल हमारे बड़े कामयाबी के साथ चल रहे हैं। एक कराची में है जो लियारी में, दूसरा हैदराबाद में और एक सखर में है। लियारी वाला जो है वो 105 बेडेड हॉस्पिटल था, हैदराबाद वाला 50 बेडेड और जो सखर वाला है वो 25 बेडेड हॉस्पिटल था। तो इन 3 हॉस्पिटल में जब मई 2010 में इसका आगाज़ हुआ था, उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 9,500 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है और तकरीबन 22,000 पेशेंट्स मई 2010 से लेके अब तक हम इनको रजिस्टर कर चुके हैं। तो अब ये जो कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी जो मिला के पूरे सिंध में हमारी वो जो बनती थी वो बनती थी 185। इस लिमिटेड कैपेसिटी के साथ इतना फिगर हमने अचीव किया। अब ये जो 2 हमारे सेंटर जो इनॉग्रेट हो रहे हैं यहाँ पे, एक मंगो पीर में और एक मलीर में, इनमें मंगो पीर जो है वो 200 बेडेड है और मलीर वाला जो है वो 100 बेडेड हॉस्पिटल है। इन दोनों के शामिल होने से अभी सिंध में हमारी जो कैपेसिटी है वो 485 बेड्स की हो जाएगी, जो इस वक्त से मोर देन डबल चली जाएगी। और इस सिलसिले में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सिंध गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ऑल आउट सपोर्ट दी, ना सिर्फ इनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बल्कि फंक्शनिंग के लिए भी सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ साथ रही, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे इनको इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, हमारी जो ये जितनी भी हमारी ये ट्रीटमेंट और रिहैब जो चल रहा था, इसमें एक कंसर्न ज़्यादा आता था जो सिर्फ हमारे से पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं है, वैसे ओवरऑल इसके इलाज से रिलेटेड है, जो रीलैप्स केसेस होते हैं। अब रीलैप्स केसेस का बेसिकली जो हमने एनालिसिस किया उसमें ये हुआ कि इसका ट्रीटमेंट से कम माहौल जिस जगह पे वो वापस जाते हैं, जिस तरह जाते हैं, उसका ज़्यादा अमल दखल था। तो उस सिलसिले में हमने सोचा, हमने डिस्कस किया, DG की गाइडेंस पे हमने जो रीलैप्स को रोकने के लिए हमने सोचा कि ये जो हमारे रीहैब का जो फेज़ है ये इस जगह आके ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसका हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें ये जो जब ट्रीट होते हैं इसके बाद जब ये वापस जाएं तो ये यूज़फुल मेंबर बने अपनी सोसाइटी का। उसके लिए हमने सोचा कि इनको कोई ना कोई अपने पास जब यहाँ से जा रहे हैं तो इनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें ऐसे स्किल उनको सिखाए जाएँ कि अव्वल तो उनको जब वापस जाएँ तो उनको कोई नौकरी वगैरह मिल जाए, और अगर नौकरी ना भी मिले तो वो ऐसे स्किल हों जिसके बेसिस पे वो अपना कोई ना कोई काम वहाँ पे शुरू कर सकें। क्योंकि यहाँ से जब जाते थे